Hello students, welcome to class 11th and subject is political science. Students, see the cover page of the book. This is the book Indian Constitution at the Work. Today we are going to start a new chapter, the chapter number 4, Executive. So first of all we will discuss what is the meaning of executive. Actually you must have remember about the three organs of the government which you already have learnt in the previous classes. This is the tree of the government. Okay, I am giving a brief introduction. This is the tree of government which presents the major branches of the government in a democracy. Okay, this is the government and it is having main three branches. First branch is executive, second legislature and third one is judiciary. And today we are going to start the topic. This is the executive, which is the one of the major branch of the government. Okay, so executive. The term executive deals with the very important thing that frames the things, whatever the things are framed by the legislature, this is to be implemented by the executive. So let's have the definition of the executive. What is executive? Actually executive means we can say this is a word which include the body of the persons. It is a group of the person that looks after in the implementation of rules and regulations in actual practice. Whatever the rules or regulation, जितने भी rules और regulation है legislature ने जो frame किए हैं उनको real term में practice में लेके आना, implement करना, this is the work of executive. तो इस executive में persons होते हैं, group of persons है, वो कैसे elect होते हैं, कौन कौन से person है, today we will deal with that. तो हमारे पास मेजर जो फंक्शंस हैं एग्जीक्यूटिव के वो जिस ग्रुप के द्वारा किए जाते हैं उस ग्रुप में नॉर्मली पर्सन्स होते हैं जो डेमोक्रेटिक वे से हमने इलेक्ट कर रखी हैं. ये हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, जो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है. इन द केस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट नोबडी मे टेक पॉलिसी डिसीजन और डिसाइड अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन व्हाइल द अदर one would be in the charge of implementing those rules. So the organ of the government that primarily looks after the functions of implementation administration, that is called executive. When this executive includes, mainly it includes the president, prime minister, council of minister and the bureaucrats. Bureaucrats mean the all the government officials. So we will deal all these people, those who work in the executive in detail. Let's have the detail of all these executives. Now see, we are having different types of the executive. First of all, you see this is the picture from your NCERT book. We are having different type of the executive which are based, that is system based on the principle of collective leadership, and other one is system based on the individual leadership. एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल है. ओके, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल है. तो इंडिविजुअल बेस्ड एंड कलेक्टिव बेस्ड, इसमें हमारे आ जाते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ में क्या होता है, तो यूजुअली जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. सी द कर्सर वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स एंड लिसन द वीडियो very carefully, okay, otherwise you will mix the terms. पार्लियामेंट में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट का हेड है, और प्रेसिडेंशियल में क्या है, पूरे कंट्री का, स्टेट का हेड कौन है, प्रेसिडेंट. एंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, ही इज हैविंग द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट. तो उसके पास पावर्स हैं बट वो सारी पावर्स किसके हाथ में होंगी, वो सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होंगी. मीन्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों मिलके काम कर रहे हैं और उनके वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो उनके साथ मिलके काम करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्क करने की. तो इस वे से हम कह सकते हैं हमारे पास तीन तरह के सिस्टम हो गए, बट मेजर हम दो ही काउंट करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम. इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है. ओके, तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, और जो प्रेसिडेंट है ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. जो भी लॉ है वो सिर्फ उनको सैंक्शन करते हैं नॉमिनल हेड ऑफ द. तो इसमें मेजर डिस्टिंक्शन क्या है, अ डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव
Parliamentary system, real head of executive is prime minister and president is the nominal head. ओवरऑल आपको फ्यू वर्ड्स में इसकी समरी समझ आनी चाहिए कि जो पार्लियामेंट है उसमें गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट में पूरे स्टेट का हेड प्रेसिडेंट होगा, बट वो नॉमिनल हेड होगा, सिर्फ नाम मात्र होगा, बाकी रियल पावर उसकी कौन यूज करेगा, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रियल पावर्स होगी। नाउ सी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये हम श्रीलंका की एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें 1978 में श्रीलंका में जो था, श्रीलंका में जो प्रेसिडेंट उनका इलेक्ट हुआ एग्जीक्यूटिव का, वो एक नया सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम था जो 1978 में इट वाज इंट्रोड्यूस इन श्रीलंका। ओके, तो वहाँ पे क्या था, पीपल डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट, इट मे हैपन बोथ द प्रेसिडेंट and the prime minister belong to the same political party to or to the different political party। जो उनके लीडर्स थे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, जो दोनों हमारी एग्जीक्यूटिव के मेन मेंबर हैं, तो श्रीलंका में दोनों को डायरेक्टली चूज करना शुरू कर दिया। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को हम डायरेक्टली चूज करते हैं एंड प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो 6 ईयर के लिए चूज होता है। ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट हेड हो गया, गवर्नमेंट का भी हेड, और यहाँ पे जो सिस्टम है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, जैसे अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहाँ पे टोटल प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मीन्स जो प्रेसिडेंट है वो रियल हेड है, गवर्नमेंट का भी हेड है, पूरी स्टेट का भी हेड है, उसके पास सारी पावर्स है, बोथ थ्योरी और प्रैक्टिस में, मतलब इम्प्लीमेंटेशन में और फ्रेम करने में सारी पावर उसके पास है। और ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम किसमें, मेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील में और लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज में है। Now see the parliamentary system, parliamentary executive in India। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने क्यों शुरू किया, एक्चुअली इसका जो हमारे पास हिस्ट्री है, जो इसकी हमारे पास डिटेल हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है इसकी, वो 1919 एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ड्यूरिंग इंडिया में 1919 और 1935 के 2 मेजर एक्ट थे, और इंडिया को ब्रिटिश रूल के अंडर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम में वर्क करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया था, किस तरह से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, इफेक्टिव बेसिस को चलाना। सो इंडियंस वर हैविंग द वेरी गुड एक्सपीरियंस अंडर द ब्रिटिश रूल। तो हमने इसके अलावा ये भी देखा गया था, जो मेकर थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, दे वांटेड द गवर्नमेंट दैट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच, कि हमारा एग्जीक्यूटिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इस सिस्टम में हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट्री जो मैकेनिज्म है, जिसमें ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लोगों ने इलेक्ट किया और लोगों के लिए वो आंसरेबल भी है, जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वट एवर द वर्क दे आर गोइंग टू बी, द वर्क इज गोइंग टू बी डन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क। ओके, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को चूज किया बिकॉज इट इज़ मोर इफेक्टिव। ओके, तो हमारे नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों जगह पे हमारा पार्लियामेंट सिस्टम है। इस सिस्टम में इन सच अ मैनर द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव एंड इन टर्न द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स द लेजिस्लेचर। मीन्स जो वर्क लेजिस्लेचर ने फ्रेम किए एग्जीक्यूटिव उनके ऊपर वर्क करेगी, और जो वर्क एग्जीक्यूटिव कर रही है तो पार्लियामेंट में ये देखा जाता है कि वो किसने बनाई है, फ्रेम किसने किए, उसने अपने आप तो नहीं किए। मीन्स लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इंटरडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। लेजिस्लेचर के फ्रेम किए हुए लॉ के बिना एग्जीक्यूटिव कोई वर्क नहीं कर सकती। ओके, तो मेन हमारा क्या हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेजिस्लेचर फ्रेम द लॉज और एग्जीक्यूटिव एनफोर्स दोज लॉज टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ सी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव में मेजर हमारा पर्सन है, जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, इधर दैट इज द नॉमिनल हेड, चाहे वो नाम मात्र का हेड है, तो उसके पास पावर्स बहुत हैं। आर्टिकल 74 का पार्ट 1, there shall be a council of ministers with the prime minister at the head of to aid and advise the president। okay? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिटन है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है इसकी हेल्प के लिए प्राइम मिनिस्टर होगा और उसके साथ उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। ये सारे मिलके प्रेसिडेंट को हेल्प करेंगे, एड करेंगे, मीन्स असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, उनको एडवाइस भी करेंगे कि क्या वर्क करना है, कैसे वर्क करना है। जितने भी हमारे लोकसभा राज्यसभा में या लेजिस्लेचर में जो भी डिस्कशंस है, लॉज है, पॉलिसी फ्रेम्स, डिबेट्स, उन सब के ऊपर जितनी देर प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट नहीं देते, अपनी सहमति नहीं देते, वो बिल लॉ नहीं बन सकता। ओके, सो
ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 74 आर्टिकल के फर्स्ट पार्ट में रिटर्न है। नाउ वी कैन सी प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल। हाउ द प्रेसिडेंट इज पावरफुल? एक्चुअली प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, मतलब सारी पावर्स तो रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स है। डिस्क्रिशनरी पावर्स मीन्स वो अपनी रीजनिंग, अपनी सेंस को खुद यूज करके उन पावर्स का यूज कर सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर्स में हम कह सकते हैं कि उसके पास एक वीटो पावर है, स्पेशल पावर है। तो जितने भी रूल्स हैं, लॉज हैं, अगर किसी सर्कमस्टांसेस में उसको लगता है rule is not applicable in the democratic system, it is going to create the disturbance or it is not in favor of the welfare of the people, तो उस केस में वो उस रूल को अपनी पॉकेट में रख सकता है। उसको पॉकेट वीटो भी बोलते हैं, उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करता, तो इसको हम बोलते हैं ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। और सबसे बड़ी डिस्क्रिशनरी पावर ये है कि जब भी हमारी लोकसभा में इलेक्शंस होती हैं, तो उस केस में जो मेजॉरिटी पर्सन है, पर्सन हु विन्स द मेजॉरिटी, तो उसको हम क्या बनाते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन देता है? उसको अपॉइंटमेंट लेटर कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है। लेकिन इन केस अगर किसी को नो पार्टी इज गोइंग टू हैव द मेजॉरिटी, डायरेक्ट मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलती, तो 2-3 पार्टीज मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट मिलकर बनाते हैं। उस केस में प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करता है कि इन पार्टीज में से बेस्ट पर्सन कौन है, हु इज बी एबल टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, तो वो खुद अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके उसको प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? द प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लाइज्ड टू फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर। जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्राइम मिनिस्टर वो इन्फॉर्मेशन उसको देता है। जो मिनिस्टर्स हैं वो भी उनको अपनी सजेशंस देते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट के पास ही क्या है? वीटो पावर है, जिसके अकॉर्डिंग या तो बिल को काफ़ी देर के लिए अपने पास रख सकता है या मना कर सकता है, रिफ्यूज करता है कि उस बिल को उसने अपनी असेंट करने के लिए दिया। सो एवरी बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। इसके बिना वो लॉ नहीं बन सकता। स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीटो पावर और डिस्क्रिशनरी पावर। दोबारा से सुन लो, वीटो पावर उसकी खास पावर है जिसके अकॉर्डिंग वो बिल के ऊपर साइन ना भी करे, उसको रिफ्यूज करे या काफ़ी देर तक उसको अपनी पास रख ले, पॉकेट वीटो यूज कर सकते हैं। और डिस्क्रिशनरी में अगर किसी सर्कमस्टांसेस में तो किसी को प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं मिलती, 2-3 पार्टीज कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है विच वन इज द पर्सन विच डिजर्व टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। So this is the discretionary power of the president. Now see here the president, Mr. Ramnath Kovind, and this is the prime minister. You all must know about this. Okay, तो ये प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट इट इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके, बट इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इलेक्शन इसकी डायरेक्ट होगी, लोगों ने चूज किया, लेकिन जो अपॉइंटमेंट है दैट इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर हु इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। The Prime Minister acts as a link between the Council of Ministers on one hand and the President as well as the Parliament on the other hand. मतलब ये दोनों के बीच में लिंक का काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को भी इंफॉर्मेशन देता है, जो लोग हैं जिस पार्लियामेंट में वो काम कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव में, वहाँ भी वो रिस्पॉन्सिबल। Now see, Vice President. Who is the Vice President? The Vice President is elected for 5 years. Okay. His election method is similar to the president. जैसे प्रेसिडेंट की इलेक्शंस इनडायरेक्ट वे से होती हैं, 5 years के लिए होती हैं, सेम वाइस प्रेसिडेंट का सेम प्रोसीजर है इलेक्शन का भी और रिमूवल का भी। जैसे हम प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए उसके ऊपर क्या होता है? इम्पीचमेंट केस फाइल होता है। इम्पीचमेंट होता है महादोष, कोई बड़ा क्राइम, तो पहले उसको लोकसभा राज्यसभा में प्रूव किया जाता है। मेजॉरिटी से अगर प्रूव हो गया देन the person is going to be resign from the designation, चाहे वो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है। अगर उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट महादोष पार्लियामेंट में प्रूव हो गया तो पहले अपनी पोजीशन से वो रिजाइन करेंगे, उसके बाद उनके ऊपर केस फाइल होगा। टिल दैट दे आर इंजॉइंग द डेजिग्नेशन नो केस कैन बी फाइल्ड। जितनी देर भी अपने डेजिग्नेशन के ऊपर है, वाइस प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट है, उतनी देर उनके ऊपर केस फाइल नहीं हो सकता। ये उनकी स्पेशल पावर है, उनकी डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है। तो वाइस प्रेसिडेंट भी सेम है, उनका अपॉइंटमेंट और जो भी उनकी रिमूवल है मेथड इज सेम एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो ये दोनों इनडायरेक्ट वे से चूज होते हैं। बट जो वाइस प्रेसिडेंट है दैट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया या डेथ होगी या किसी वेकेंट पोजीशन में, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट सर्व्स एज द प्रेसिडेंट। तो इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे राज्यसभा के भी चेयरपर्सन है। ओके, जैसे लोकसभा को प्रिजाइड करते हैं स्पीकर, तो राज्यसभा को प्रिजाइड करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की एक एग्जांपल है यहाँ पे डॉक्टर बी.डी. जत्ती। ये बी.डी. जत्ती एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑन द डेथ ऑफ फखरुद्दीन अली अहमद। ये फखरुद्दीन अली अहमद हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे, जब इनकी डेथ हो गई थी तो वाइस प्रेसिडेंट बी.डी. जत्ती ने एज अ प्रेसिडेंट वर्क किया जितनी देर नया प्रेसिडेंट इलेक्टेड नहीं हो जाता। तो ये हमारे क्या है, हमारी एग्जीक्यूटिव के मेन मेंबर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ओके, 2003 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 91st अमेंडमेंट, इससे पहले क्या था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज था उसको डिटरमाइन किया गया कि कितना हो सकता है, कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं मिनिस्ट्री में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। इनका साइज कई बार बहुत बड़ा हो जाता था, लेकिन अब क्या है, इसको फिक्स कर दिया गया। इसका साइज कितना फिक्स है, सीधा दिस इज द पिक्चर ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारे एक साथ वर्क करते हैं, दे सिंक एंड स्विम टुगेदर, एक साथ ही आते हैं और एक साथ अगर उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करते हैं। Council of Minister is responsible collectively to the House of People and it shall not exceed 15% of the total number of House of People। मतलब जितने वहाँ पे टोटल मेंबर्स हैं उनका 15% ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होनी चाहिए। और ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक मिस्टेक है तो सारी मिनिस्ट्री को रिजाइन देना पड़ेगा। हम कह सकते हैं दे सिंक एंड स्विम टुगेदर। नाउ सी स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। हमारे पास दो तरह की एग्जीक्यूटिव है। एक एग्जीक्यूटिव होती है कि जो पॉलिटिकल बेस पे इलेक्ट करके हम चूज करते हैं, जिसमें हमारे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ये सारे आते हैं। ओके, इनको बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एक होते हैं हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो रियल में हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बैक में रियल में वो वर्क परफॉर्म करते हैं। वो है हमारे सारे गवर्नमेंट सर्विसेज के जितने पर्सन है, ऑल इंडिया सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज। सी हियर आई हैव मार्क द क्लासिफिकेशन हियर। दूसरे हमारे सेंट्रल सर्विसेज हैं इंडिया में, जो फॉरेन सर्विसेज में है, रेवेन्यू सर्विसेज में है, जो स्टेट लेवल पे जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज में है, स्टेट सर्विसेज, इसमें सेल टैक्स ऑफिसर सारे आ जाते हैं। मतलब इनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारी एग्जीक्यूटिव के जितने भी मतलब मेंबर्स हैं उसमें परमानेंट और पॉलिटिकल दोनों मिलकर वर्क करते हैं। परमानेंट जो है, जो पूरा टाइम मतलब अपनी टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट वर्क करते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द यूपीएससी। वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के जो एग्जाम है उसके थ्रू हमारी की अपॉइंटमेंट होती है, तो ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी है क्या है? इस ब्यूरोक्रेसी इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रीच टू द पीपल। मतलब ये वो लोग हैं जितने भी गवर्नमेंट के प्लान पॉलिसीज हैं, एग्जीक्यूटिव जिनको इम्प्लीमेंट करती है, और ये इम्प्लीमेंटेशन में ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, हमारे ऑफिसर्स, इनका मेन कंट्रीब्यूशन होता है कि लोगों तक वो सारी पॉलिसीज अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होकर पहुँचे। तो दिस इज द ब्यूरोक्रेसी। इसमें सारे IAS, IPS, ICS ऑल द ऑफिसर्स आर इंक्लूडेड। तो अब देखते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। इनमें सारे हमारे पास जितने भी ऑफिसर्स हैं वो आ गए। लेकिन ये सारे ट्रेंड और स्किल्ड ऑफिसर्स होते हैं। ये अपने स्किल के, अपनी एजुकेशन के बेस पे इलेक्ट होते हैं, ये सिलेक्ट होते हैं, और जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो सिलेक्ट होते हैं। देखो इनका डिफरेंस मैंने क्लियरली यहाँ पे लिख दिया। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ये नॉन परमानेंट, क्यों? बिकॉज 5 ईयर्स से पहले भी हमारी जो लोकसभा है वो डिजॉल्व हो सकती है। स्टेट लेवल पे भी जो हमारी असेंबली वो डिजॉल्व हो सकती है, मतलब टाइम से पहले ये इनको तोड़ा जा सकता है, नई गवर्नमेंट बन सकती है। तो ये पीपल है नॉन पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिक्स से दूर होते हैं, मतलब ये इलेक्शन बेस पे नहीं बनते, ये सिलेक्शन बेस पे अपॉइंट होते हैं, एंड दे वर्क टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट।
और उनको बहुत गुड सैलरीज मिलती है, सिविल सर्वेंट्स हैं, सारे एग्जीक्यूटिव है रियल टर्म में। अगर हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बंद भी होगी, प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है सपोज, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनके एब्सेंस में हमारी कंट्री का वर्क नहीं होगा, तो वर्क इज गोइंग टू बी डन परमानेंटली बाय द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सो स्टूडेंट ये था हमारा एग्जीक्यूटिव्स का जो मैंने आपको भी समरी बताई है। सो स्टूडेंट्स थैंक you for being connected and listening the chapter. Again, I am suggesting you to watch the video repeatedly for the better outcomes, and don't forget to subscribe the channel. We will be soon there with the new video. Till that, goodbye students.